Hello dear students, welcome back to English class. In today's video, we are going to learn about direct and indirect speech. Okay, so you have to open your grammar book on page number 86 and 87. So direct and indirect speech. Now what is direct speech and what is indirect speech, that we are going to learn through an example that is given on page number 86. Read out the first example. Rama said, Ashok is an idle boy. Second sentence, Rama said that Ashok was an idle boy. So what is the difference between the two sentence students? They both have the same meaning. दोनों sentence का meaning same है. दोनों sentence के message जो है वो same ही है. एक ही बात कही है लेकिन कहने का तरीका अलग है. Okay? So the way of communicating, that is different. Okay? So first one, Rama said Ashok is an idle boy. In this sentence, you can see there is a comma after the said and the word, exact words are put in the inverted comma. जो बात कही गई है वो inverted comma में है और जो second sentence है वहाँ ना तो कोई comma है ना inverted comma है. Okay? So जो first sentence है वो exact word है speaker के. Okay? In the first sentence there are the exact words and in the second sentence the words are there is little bit change in the words but the meaning is same. तो जो first sentence है उसे हम direct speech कह सकते हैं और जो second sentence है that is indirect speech. Okay? So यहाँ पर जो said है वो क्या है, वो reporting verb है और जो sentence हमारा है that is reported speech. Okay? So like क्या लिखा हुआ है, these two sentences illustrate the two ways in which we may report the words of the speaker. So in the first sentence we give the exact words used by the speaker. First sentence में जो speaker ने कहा वो exact हमने वैसे का वैसे बता दिया, लेकिन जो second sentence है उसमें थोड़ा सा change करके बताया गया. Okay? In the first sentence, said is a reporting verb and the sentence Ashok is an idle boy, it is a reported speech. जो said होता है ना उसे reporting verb कहते हैं और उसमें जो आगे जो sentence होता है inverted comma में उसे हम reported speech कहते हैं. In the second sentence we do not give the exact word of the speaker. जो second sentence है उसमें हम speaker के exact word नहीं कहते. Suppose जैसे इसमें कहा है कि Rama said, रामा ने कहा Ashok is an idle boy, अशोक एक idle boy है. और दूसरा सेंटेंस का क्या मतलब है कि रामा ने कहा कि अशोक एक आइडल बॉय था. ओके? सो इन द सेकेंड सेंटेंस वी डू नॉट गिव द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट गिव ओनली द सब्सटेंस ऑफ व्हाट ही सेड. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. सो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में हम एग्जैक्ट वर्ड्स कहते हैं जो स्पीकर ने कहे हैं और इनडायरेक्ट में हम उसे थोड़ा सा चेंज करके उसे अदर वे में कहते हैं. दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. So now we will know the difference between the two. दोनों में difference क्या है. जो direct speech होती है वो हमेशा हम उसमें said लिखते हैं और said के बाद में हमेशा comma होता है और comma के बाद में जो भी हमारी speech होती है, reported speech होती है, वो inverted comma में होती है. ओके? और जो indirect होती है उसमें ना तो कोई comma होता है और ना आपकी speech inverted comma में होती है. ओके? और डायरेक्ट में हम दैट वर्ड यूज़ नहीं करते, जबकि जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब हम सेड के बाद में दैट यूज़ करते हैं. ओके? लाइक देयर आर रूल्स आर गिवन इन योर बुक ऑल्सो. द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमा. So whatever words, whatever the reported speech is, that is given in the inverted comma. Okay? Direct में the first word of reported speech begins with a capital letter. सो said के बाद जो कॉमा है और जब आप इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी स्पीच शुरू कर रहे हो उसमें जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है दैट विल कम कैपिटल. लाइक आपने देखा है अशोक में ए कैपिटल है, ये तो वैसे भी कैपिटल होना था क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, राइट, एंड इट इज़ अ नेम. अ कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब टू सेपरेट इट फ्रॉम सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सो सेकेंड पार्ट से सेपरेट करने के लिए वहाँ कॉमा लगता है, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ. नाउ इन द सेकेंड सेंटेंस में क्या करना है, सेकेंड में हम दैट यूज कर. द रिपोर्टेड वर्ड्स आर नॉट प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है. अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहला रूल है कि हम इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, हम कॉमा भी हटा देंगे और वहाँ पर हम दैट यूज़ करेंगे.
नो कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर सेड, कॉमा भी हम हटा देंगे, दैट इज द सेकेंड रूल. द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन दैट. व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन मीन्स द वर्ड दैट जॉइन द टू डिफरेंट सेंटेंसेस. तो हम सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर दैट प्लेस करेंगे. ओके, द वर्ब इज चेंज टू was. The tense of verb in reported speech is changed from present to past. जो अगर आपका सेंटेंस में इज है तो वो was में चेंज हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ टेंसेस के भी रूल्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं. देयर आर सो मैनी रूल्स, तो वी विल लर्न दैम पार्ट बाय पार्ट. ओके, सो कुछ रूल्स, जैसे आज 2 रूल्स हमने लर्न कर लिए, नेक्स्ट सेशन में हमने आगे के 2 रूल्स लर्न कर लिए. सो सबसे पहले तो आप इनमें डिफरेंस समझ लो, उसके बाद हम नेक्स्ट रूल्स पे आते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स डायरेक्ट जब स्पीच अगर होती है तो उसमें जो भी सेंटेंस होता है, सेट जो होता है, इसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं. और जो अंदर का जो मैटर होता है इन्वर्टेड कॉमा में होता है और उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है. ओके, और वहाँ पर सेट के बाद कॉमा हम यूज़ करते हैं, राइट. और जो जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है तो वो कैपिटल लेटर से होती है. ओके, दैट आर द रूल ऑफ डायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, कॉमा हट जाता है और हम वहाँ पर दैट यूज़ करते हैं. इज है वो वॉज में चेंज हो जाता है. ओके, क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया? नाउ लेट्स गो थ्रू द रूल्स. ओके, rules for changing direct speech into indirect speech. The following rules will help you in changing direct speech into indirect. If the reporting verb is in present or future, the verb in the reported speech is not at reported speech is not changed at all. अगर आपकी स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में टेंस में है तो आप जब उसे इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, बाली सेज. नाउ सेज, जो ऊपर आपने सेंटेंस पढ़ा था उसमें था सेड. इट मीन्स वो जो सेंटेंस था आपका वो पास्ट टेंस में था, राइट. सेज का मतलब आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है. अगर ये विल से होता तो आपका सेंटेंस होता फ्यूचर में. तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो वहाँ पर सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. लाइक बाली सेज देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट. नेक्स्ट, जब हमने इसे इनडायरेक्ट में चेंज किया, बाली सेज दैट देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट. तो डू यू फाइंड एनी चेंज इन द सेंटेंस? नो चेंज. ओके, एज इट इज सेंटेंस आ गया, जस्ट हमने दैट यूज किया है और इन्वर्टेड कॉमा वहां से हटा दिया है. ओके, सो बाली सेज दैट देयर इज नो इंक इन द पॉट. सिमिलर सेंटेंसेस आर गिवन ऑन पेज नंबर 87. स्टूडेंट, द टीचर सेज द बॉय वॉज लेजी. The teacher says that the boy was lazy. Again says, और जो तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में ही है. The teacher says that the boy was lazy. Next one, the headmaster says Mohan will fail. अब आपने देखा ये सेंटेंस भी प्रेजेंट में है, सेज है यहाँ पर. इट मीन्स आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ दैट वहाँ इंक्लूड करना, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना. Okay, so the headmaster says that Mohan will fail. Next, Afzal will say dinner is ready. Now this sentence is in future. Future में हम will और shall use करते हैं, right? So सबसे पहले आपको सेंटेंस का फॉर्म चेक करना है कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है स्टूडेंट्स. तो will say it means your sentence is in future tense. So Afzal will say dinner is ready. Afzal will say that dinner is ready. Now Rama will say nobody was in the room. Rama will say that nobody was in the room. The teacher will say Harish will pass. The teacher will say that Harish will pass. So in all these sentences, these sentences are in present form as well as in future form. अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपके सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाना और दैट यूज करना. Clear है? First rule is, I hope that it is clear. Now the second rule, if the reporting verb is in past tense, the verb in the reported speech is also changed to past tense. अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है, पास्ट में है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी पास्ट में ही आएगा. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस, the simple present becomes the simple past. Now there
द सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकम द सिंपल पास्ट। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। लाइक सीता सेड कमला वर्क्स वेरी हार्ड। तो ये जो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है इट मीन्स वहाँ पर सेड है। सेड का मतलब आपका ये सेंटेंस है पास्ट में, लेकिन आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है तो वो अगर आपकी सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सीता सेड, सेड का मतलब आपका सेंटेंस पास्ट में है, लेकिन जो हमारी स्पीच है कमला वर्क्स वेरी हार्ड ये चेंज हो जाएगी पास्ट में। सीता सेड दैट कमला वर्कड वेरी हार्ड। क्लियर आ रहा है समझ में? डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समझने की अगर आप कोशिश करोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है, सेड मतलब आपका सेंटेंस पास्ट में है, ओके, लेकिन आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगी। सीता सेड दैट कमला वर्कड वेरी हार्ड। नेक्स्ट वन, अनिल सेड रीटा सिंग्स डेली। अनिल सेड दैट रीटा सैंग डेली। सिंग का पास्ट फॉर्म क्या होता है? सैंग। So Anil said that Rita sang daily. Next one, the present continuous becomes the past continuous. तो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगी। लाइक ही सेड का मतलब आपका सेंटेंस पास्ट में है, लेकिन जो उसकी रिपोर्टेड स्पीच है रमन इज वर्किंग हार्ड मतलब वो प्रेजेंट में वर्क कर रहा है। सो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? ही सेड दैट रमन वॉज वर्किंग हार्ड। आप इसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करोगे, इज जो है वो वॉज बन जाएगा। नेक्स्ट वन, ही सेड द हेडमास्टर इज स्लीपिंग। ही सेड दैट द हेडमास्टर वॉज स्लीपिंग। सो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने चेंज किया पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, अगर पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। द प्रेजेंट परफेक्ट बिकम द पास्ट परफेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। कैसे? ऐसे, गोपाल सेड हरी हैज डन हिज वर्क। Gopal said that Hari had done his work. Okay, as you know the rules of tenses, आपको tenses के rules clear हो गए हैं, उसकी जो tables हैं वो formulas हैं वो आपको अच्छे से learn करनी है students, तब आप इसे कर पाओगे। okay, because direct and indirect is based on tenses. okay, इसमें tenses को कैसे change करना है या कैसे maintain रखना है ये important है। so this can be done only when you can learn all the rules of tenses. ओके, सो इसमें हैज डन था तो वो क्या बन जाएगा? हैड डन। ओके, नेक्स्ट वन, शी सेड कमला हैज रिटन द लेटर। शी सेड दैट कमला हैड रिटन द लेटर। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, मे इज चेंज इनटू माइट, कैन इज चेंज इनटू कुड। सो मे, अगर आपके सेंटेंस में मे वर्ड यूज किया गया है तो इनडायरेक्ट में वो माइट में चेंज हो जाएगा, और अगर आपके सेंटेंस में कैन है तो वो कुड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द बॉय मे पास। ही सेड दैट द बॉय माइट पास। आई सेड आई कैन डू द सम। आई सेड दैट आई कुड डू द सम। ओके, क्लियर। सो ऑल दिस एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग सम मोर एग्जाम्पल्स। आज के लिए इतना ही है, आप पहले ये एग्जाम्पल्स लर्न कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और रूल्स आपसे शेयर करूंगी और कुछ रूल्स हम सीखेंगे, बिकॉज एक साथ में आप इन्हें लर्न नहीं कर पाओगे ना समझ पाओगे। सो फॉर टुडे आप पेज नंबर 86 और 87 पे जो रूल्स हैं उन्हें आप लर्न कर लो। नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द अदर पार्ट। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।